Hello students, today we are going to start third unit, that is metals and non-metals. As you know that there are so many elements, as you remember that according to books there are 115 elements known today, but exactly today 118 elements are known in practical if you are going through the journals. मतलब आप देखिए बुक्स में ये आपको दिया हुआ है कि 115 एलिमेंट नोन है, तो आप 115 ही रिपोर्ट करेंगे क्योंकि जो बुक्स में है वही ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। परंतु आप एनटीएससी वगैरह में जाएं तो आज के डेट में 118 एलिमेंट तक नोन हो चुके हैं, इस बात को आप ध्यान दें। परंतु अभी भी एनसीईआरटी वगैरह में 115 ही दिया हुआ है। अब देखिए 115 एलिमेंट को अलग अलग अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल काम है, अतः हम लोग क्या चाहते हैं, इन तत्वों को किसी खास ग्रुप में विभाजित कर दिया जाए। वी नीड टू क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स इन सम ग्रुप्स सो दैट वी कैन स्टडी देम इजीली एंड वी कैन यूटिलाइज देम इन प्रॉपर वे फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। मतलब हम लोग उनको अच्छे से अध्ययन कर सकें और जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए अच्छे से इन तत्वों का प्रयोग कर सकें। इनके लिए कुछ ग्रुपों में विभाजित किया गया। And if we are going to classify these elements in broader sense, then there are three types of elements on the basis of properties. On the broader sense, all elements can be divided into three types. First one is metals, second one is non-metals, and third one is metalloids. They are also known as semi-metals. This chapter is completely dedicated to metals and non-metals. So we are going to read in detail about metals and non-metals. So first point is, what is the definition of the metals? What is the definition of the metals? So metals, those elements which conduct heat and electricity and are malleable as well as ductile, are known as metals। मतलब वैसे एलिमेंट जो क्या हो, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हो, मतलब विद्युत और उष्मा के सुचालक हो, एंड आर मैलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। जो मैलिएबल और डक्टाइल है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या है, आपको हो जाएगा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, potassium, sodium are examples of this one. Now next one is non-metals. Those elements which do not conduct heat and electricity and are neither malleable nor ductile are known as non-metals. They are brittle in nature. ये ब्रिटल होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। मतलब आप अगर हैमर से हम लोग बीट करें उसको तो तुरंत क्या होता है, पाउडर में बदल जाता है। इसके कुछ एग्जांपल देखिए, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है, आपको एग्जांपल है नॉन मेटल्स के। नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड्स। Those elements which behave like metals as well as non-metals, both are known as metalloids or semi-metals. For example, silicon and germanium, ये सभी एग्जांपल हो गए आपको मेटलॉइड्स के। Now we are going to see physical properties of metals in detail.
So see, first point, they conduct heat and electricity. आपने डेफिनेशन से ही देखा था कि they are good conductor of heat and electricity. And silver is the best conductor of heat and electricity. सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? सिल्वर है, Ag. इसके बाद देखिए Co and Al means copper and aluminium are another very good conductors. Therefore, you are seeing that copper and aluminium is used for making electric wires. Now, next one is they are malleable. Malleable होता क्या है? Malleability is the property of the metals. Property of the metals due to which they can be beaten into thin sheet with hammer. जब हम लोग हैमर से इसे पीटे तो ये क्या हो सकता है? थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। और इसी हम लोग प्रॉपर्टी की वजह से मेटल का कहाँ यूज करते हैं? गेट बनाने में, ट्रक, ट्रैक्टर, कार वगैरह जितने आपको बॉडी है, मेटल्स को पीट पीट करके अपने डिजायरेबल शेप दे करके हम लोग उन्हें शेप दे करके अपना वस्तुएं बनाते हैं। तो अब देखिए मैलेबिलिटी सबसे अच्छा किसका है? गोल्ड का, इसके बाद सिल्वर का, इसके बाद कॉपर का, देन एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट वन इज दे आर डक्टाइल। Ductile means ductility is the property of the metals due to which they can be stretched or drawn into thin wires. मतलब यह क्या है? मेटल्स की वह प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम लोग उनको थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। और यह सबसे अच्छा क्वालिटी वाला एलिमेंट कौन सा है? तो गोल्ड है। गोल्ड इज द बेस्ट डक्टाइल मटेरियल एंड यू कैन इमेजिन दैट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड can be drawn into 2 kilometers of long wire. 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो आप इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को सोचिए कितना अच्छा है। अदर बेटर एग्जांपल्स आर सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नाउ सी, ड्यू टू दिस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी it is helpful for us to make long wires of aluminum, copper, silver for conduction of electricity. They are shiny और lustrous. Metals क्या होते हैं? Shiny और lustrous होते हैं। They are hard except sodium and potassium. Except sodium and potassium, which are soft and they can be cut with knife. इन्हें हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। इनको छोड़ करके अदर मेटल्स जनरली क्या है? हार्ड है। They are strong except sodium and potassium. Sodium and potassium are weak, but अदर मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। और इसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम लोग पंखे वगैरह को किस में लटकाते हैं? जनरली हम लोग लोहे वगैरह जो मेटल है उनमें हम लोग लगाते हैं, क्योंकि लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके पास वेट को बियर करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए भारी ऑब्जेक्ट जहां भी हमें लटकाना होता है वो हम लोग मेटल में लटकाते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई except gallium, cesium, sodium and potassium. For gallium symbol is Ga, for cesium symbol is Cs. तो ये देखिए, अगर इन्हें हथेली में लीजिए तो रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? लिक्विड हो जाते हैं। इनके साथ साथ सोडियम और पोटेशियम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दे एग्जिस्ट एज सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। यहां ध्यान दीजिए, मरकरी हमेशा किस स्टेट में रहता है? आपको लिक्विड स्टेट में रहता है। इसलिए यहां हमने सिर्फ एक्सेप्ट मरकरी दिया है। हमने गैलियम और सीजियम किस पर? जब आप रूम टेम्परेचर मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही वो लिक्विड में जाते हैं, नहीं तो वो सॉलिड में रहते हैं। परंतु मरकरी हमेशा किस में रहता है? लिक्विड स्टेट में। तो यह एक एक्सेप्शन है और इसे आप ध्यान देंगे। मरकरी इज ओनली मेटल विच ऑलवेज एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जनरली मेटल्स आर हैविंग हाई डेंसिटी एक्सेप्ट, फिर देखिए वही कौन है एक्सेप्शन में? सोडियम एंड पोटेशियम। दे आर हैविंग वेरी लो डेंसिटीज। नाउ दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन बीटिंग। अगर हम लोग जैसे मेटल पर क्या करते हैं? बीट करते हैं, तो आप ध्यान देते हैं कि रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। ट्रेन दूर से आते रहती है, स्टेशन पर आप खड़े हैं, आपको ट्रेन की आवाज धीरे धीरे पटरी से सुनाई देते रहता है। किसके वजह से? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू सोनोरोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप स्कूल वगैरह में देखिए तो बेल किसका बना हुआ है? मेटल्स का बना हुआ है।
ताकि आपको जैसे उस पर हैमरिंग किया जाए तुरंत आपको रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे। दे आर हैविंग सिल्वर और ग्रे कलर। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द metals. Next one is physical properties of the non-metals. They are bad conductor of heat. Then they are bad conductor of electricity. It means they do not conduct electricity except graphite, which is a form of carbon, and this is a non-metal. And graphite is very good conductor of electricity. यह क्या है, एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और यह कार्बन का एक फॉर्म है जिसे एलोट्रोफ कहते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे 4th चैप्टर में। दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ये नहीं मेलिएबल है और नहीं डक्टाइल है, रादर दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब क्षणभंगुर, एक बार उन्हें हैमरिंग किया जाए तो यह क्या हो जाता है, पाउडर्ड पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर नॉट लस्टरस एक्सेप्ट आयोडीन, यहां भी एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस नहीं होते हैं, बट आयोडीन इज वेरी लस्टरस, दैट इज अनदर एक्सेप्शन हियर इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स। दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, यहां देखिए यहां भी एक एक्सेप्शन है। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस। देखिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन देखिए प्रकृति में क्या एक्सेप्शन है, क्या अपवाद है कि आपको हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस भी क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन और सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एंड डायमंड इज एन इलेक्ट्रोफ ऑफ कार्बन। अब इलेक्ट्रोफ का मतलब पिछले बार भी आया था, ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रोफ ऑफ कार्बन, यहां डायमंड इज इलेक्ट्रोफ ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, यहां देखिए इलेक्ट्रोफ का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोफ इज डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का क्या होता है, यह डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होता है, और फिजिकल फॉर्म में क्या होगा, उस अलग अलग फॉर्म में सेम एलिमेंट का अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफ कहते हैं। तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रोफ होते हैं, कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरिन। हम लोग इसे 4th चैप्टर में डिटेल में देखना भी है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी ब्रोकन इजिली, नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग इजिली ब्रेक भी कर सकते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो एक्सेप्ट डायमंड, यहां भी एक्सेप्शन डायमंड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। देयर डेंसिटीज आर लो एक्सेप्ट डायमंड, नॉन मेटल के डेंसिटी भी क्या होते हैं, लो होते हैं। यहां भी डेंसिटी जो है डायमंड का एक्सेप्शन में है, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है। They are not sonorous, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। They exist as solid or gas except bromine, तो यहां भी देखिए एक एक्सेप्शन आ गया। मेटल्स में एक ही लिक्विड एग्जिस्ट करता था, वह क्या था, आपको मरकरी था, और यहां एक ही एलिमेंट जो है नॉन मेटल है, वह लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वह है ब्रोमीन। They are having different colors, for example chlorine is having green color, ब्रोमीन इज हैविंग रेडिश ब्राउन कलर, तो आयोडीन जो है उसका ब्लूइश कलर होता है। तो इस तरह डिफरेंट एलिमेंट जो है नॉन मेटल के, उनका डिफरेंट कलर होता है। वी हैव सीन दैट देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो वी आर गोइंग टू समराइज सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हियर। सी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ electricity except graphite. You know that graphite is a non-metal which is an electroph of carbon, and that is good conductor of electricity. Non-metals are not lustrous except iodine. Iodine जो है lustrous होता है। Metals are hard except sodium and potassium. ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं सोडियम पोटेशियम को। Metals are having high densities एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी लो होता है, लेकिन और मेटल्स का क्या होता है, डेंसिटी काफी अधिक होता है। इसी तरह से देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर हाई एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम, सीजियम एंड गैलियम। ये लोग क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट
क्या होता है, काफी लो होता है। ये लिक्विड रूम टेम्परेचर पर क्यों होते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जैसे आप देखें सामान्य टेम्परेचर हमारे यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं, लेकिन कोल्ड सीजन में क्या रहेंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, एंड फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। सो सी हियर, फर्स्ट पोटेशियम reacts with oxygen to give potassium oxide, sodium reacts to give sodium oxide, calcium gives calcium oxide with oxygen. In the similar manner, magnesium plus oxygen, magnesium oxide, aluminum plus oxygen, aluminum oxide, iron plus oxygen gives Fe3O4, copper and oxygen gives CO. अब यहां देखिए जो ऑक्सीजन के साथ रेट देखा गया वो हमें देखने की बात है। अब देखिए पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट्स विगरसली, ये विगरस रिएक्शन करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन जो है विगरस है। अब देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्शन करता है लेकिन उतना फास्ट जितना सोडियम और पोटेशियम फास्ट रिएक्शन करता है उतना कैल्शियम फास्ट नहीं करता। अब देखिए मैग्नीशियम जो है यह रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होता है, जब हम इसे हीटिंग करते हैं तभी जाकर के रिएक्शन होता है, ये अपने आप नहीं होता है। इसके बाद एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इसे भी हमें जितना इसको हीट करना पड़ता है उससे अधिक हीट करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए एक हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मिल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स मिल रहा है। अगर हम लोग देख रहे हैं तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसका हुआ, पोटेशियम का, और लगभग सोडियम का, दोनों का बराबर है। इसके बाद देखे हमने कि कैल्शियम, अब देखिए कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम अपने आप रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ नहीं करता है, उसे हमें हीटिंग करनी पड़ती है, तो वो आ गया। अब देखिए जितना मैग्नीशियम को हीट देना पड़ा उससे ज्यादा हीट एल्युमिनियम को देना पड़ा, इसका मतलब और यहाँ एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ शुरू हो गया, तो क्या आ गया, एल्युमिनियम आ गया। अब देखिए इनके बाद एल्युमिनियम के बाद आयरन को, और देखिए इसे आयरन के पीस को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाए तो रिएक्शन नहीं करता है। अब हम क्या करते हैं, आयरन के पीसेस ले लेते हैं, आयरन के फाइन पीसेस, छोटे छोटे पीस ले लेते हैं, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, Fe3O4 देता है। तो देखिए यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन और स्लो हो गया, एल्युमिनियम से आयरन का स्लो हो गया। अब देखिए कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं करता है, इसको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती है, मतलब लंबे टाइम तक गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के आपको CO का ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है। तो ये देखिए आयरन के बाद क्या हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर के बाद देखिए यहाँ सिल्वर और गोल्ड जो है इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो देखिए इस तरह से एक ऑर्डर मिल गया कि कौन सबसे अधिक रिएक्शन करता है, कौन सबसे कम रिएक्शन करता है। नाउ सी हियर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट एट रूम टेम्परेचर Mg, aluminium, zinc and lead, they react very slowly with oxygen. Why? ये रूम टेम्परेचर पर Mg, एल्युमिनियम और जिंक और लेड क्या करते हैं, इनका रिएक्शन स्लो होता है, ऐसा क्यों? तो आपने Mg के विषय में तो पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, क्या है, Mg एक मेटल है और आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, एक इसके ऊपर थिन लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसी तरह देखिए इनके केस में क्या होता है, एल्युमिनियम के केस में यहां पर भी एल्युमिनियम आपको एक थिन लेयर बना देता है, किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। और जिंक पर भी क्या होता है, इसी तरह जिंक पर भी एक थिन लेयर बन जाता है, किसका, जिंक ऑक्साइड का। लेड पर लेड ऑक्साइड का। तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि ये लेयर बनने से आप जानते हैं कि थिन लेयर का होता है और प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, थिन लेयर होता है और प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये इनको देखते हैं, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं
तो ये इनका रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो इन दीज केसेस ड्यू टू थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ड्यू टू थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction is slow in Mg, zinc, aluminium and lead due to thin layer of their oxide, तो इनके ऑक्साइड की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है क्या होता है, स्लो होता है. नाउ सी हियर वी सीन दैट thin layer of Al2O3 helps in protecting the aluminium from further corrosion. So this merit of protection of aluminium oxide on aluminium outer layer is utilized in the process for making it long lasting in our everyday life. You can see here in process that is known as anodization or anodizing. As we know that thin layer of aluminium oxide on aluminium helps it to protect from the corrosion. ये thin layer corrosion में फर्दर होने से इनको रोकता है. So in a reaction aluminium is taken as anode in dilute sulfuric acid solution. Then oxygen is produced at anode and that oxygen will react with aluminium to produce what? To form protective layer of aluminium oxide. हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में एल्यूमिनियम को ले लिया और इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया. जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो एल्यूमिनियम को एनोड रखा है, इसलिए यहाँ एनोडाइजिंग भी कर रहे हैं. एल्यूमिनियम को एनोड रखा है और वहां ऑक्सीजन बनेगा. तो ऑक्सीजन बनेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, एनोड पर Al2O3 का थिक लेयर बनाएगा जो प्रोटेक्टिव नेचर का होगा और ये फर्दर कोरोजन को रोकेगा. तो इस तरह से हम लोग एल्यूमिनियम के पॉट्स को अपने डेली लाइफ में और लॉन्ग लास्टिंग यूज कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनोडाइजेशन और एनोडाइजिंग. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स. व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स? सी हियर सोडियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव sodium oxide. Then how we can test that whether it is acidic or basic in nature? For this purpose we are going to take one acid which is well known, that is hydrochloric acid. This is an acid. So we are seeing that with acid it is giving what? Sodium chloride plus H2. Means we got here salt and water. We got here salt and water. So see here, we know that salt and water is produced only when acid reacts with. आप जानते हैं क्या कि salt और water तभी बनता है जब एसिड किससे रिएक्शन करता है, बेसिक सब्सटेंस से रिएक्शन करता है. Therefore sodium oxide is basic in nature. तो आप लिखेंगे कैसे? Since ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा. सिंस वी नो दैट salt and water only produced when acid reacts with base. Acid reacts with base. Since HCl is an acid, HCl यहाँ क्या है? एसिड है. Then Na2O will be
basic in nature. Will be basic in nature. Therefore, we got here that metallic oxides are basic in nature. Therefore, metallic oxides are basic in nature. So you should keep in mind that metallic oxides are basic in nature. You can take here H2SO4. तो H2SO4 लेंगे तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर मिलेगा, मतलब सॉल्ट और वाटर फिर मिलेगा. तो इस तरह से एक रिएक्शन लीजिए और उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कीजिए. Now see another case of metallic oxide. In the case of aluminium reacts with oxygen to give aluminium oxide. Aluminium reacts with oxygen to give aluminium oxide. Then what is the nature of aluminium oxide? We are going to discuss this. First we are going to treat it with HCl. So we got here AlCl3 plus H2. तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या मिला, ये सॉल्ट मिला और ये वाटर मिला और ये क्या है, एसिड है. So what is the nature of aluminium oxide here? See here, salt and water is produced when it is reacting with well-known acid. Therefore here it is behaving as basic. Now another reaction, aluminium oxide plus well-known base हमने ले लिया है, well-known base ले लिया. अब देखिए बेस के साथ ये रिएक्शन किया तो ये देता है सोडियम एल्यूमिनेट. ये हो गया, सॉल्ट हो गया. और इनके साथ देखिए, साथ में मिला हमें H2 मिला, वाटर मिला. और हम जानते हैं कि जब बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा. वी नो दिस. कौन है? तो यहां क्या है, ये एसिडिक नेचर का हो गया. तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिडिक और बेसिक दोनों जैसा बिहेव कर रहा है. So the oxides which behave as acid as well as base, then that is known as amphoteric oxide. So the oxides which reacts with acid as well as base both, then that is known as amphoteric oxide. अब बायोलॉजी का एम्फीबियन टर्म से ध्यान रखिए. एम्फीबियन फ्रॉग होता है. यहाँ एम्फीबियन से आप ध्यान रखिए इस ऑक्साइड को. जैसे क्या होता है, फ्रॉग है. फ्रॉग इज एन एनिमल और दोज एनिमल्स व्हिच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड आर नोन एज एम्फीबियंस. तो यहाँ भी क्या है, ध्यान रखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो क्या करे, एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करे या एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे, उसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. तो आप एम्फीबियन से रिलेट करके याद रख सकते हैं. नाउ सी सेम सिचुएशन हैपेंस विथ जिंक ऑक्साइड. ZnO अगर इसको HCl से रिएक्शन करे वेल नोन एसिड से तो ये हमें क्या देता है, ZnCl2 प्लस H2. तो यहां देखिए ये हमें क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर मिल गया. Salt and water is obtained here. It means what is the nature of zinc oxide? So nature will be basic. Because acid reacts with base, then only salt and water is produced. In the similar manner, you see another reaction when zinc oxide reacts with NaH, then we get here
सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस H2। तो यहां भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिला। और हमें पता है ये वेल नोन क्या है, बेस है, वेल नोन बेस। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड हियर? दिस मस्ट बी व्हाट, एसिडिक। एसिडिक क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि सॉल्ट और वाटर कभी बनता है जब बेस किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से। सो इट्स नेचर मस्ट बी एसिडिक, मस्ट बी एसिडिक। therefore zinc oxide is also an amphoteric oxide, an amphoteric oxide। यह भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लेता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर, और व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जांपल। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो दिस मच फॉर टुडे। अदर केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।